And we want to consider today something more about the meaning of love. हम आज प्रेम के अर्थ के बारे में कुछ और विचार करना चाहते हैं. A word which is much misunderstood, but which we can understand clearly when we look at the life of Jesus and see how we can have the same love in our life for other people. एक ऐसा शब्द जिसे बहुत गलत समझा गया है, लेकिन हम इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं और देखते हैं कि हम अपने जीवन में अन्य लोगों के लिए प्रभु यीशु के समान प्रेम कैसे रख सकते हैं. One mark of love is gentleness. प्रेम का एक चिन्ह कोमलता है. Jesus was gentle with all people, particularly with people who were battered by life, who had fallen into sin. Jesus loved especially those who had fallen deeply into sin. प्रभु यीशु सभी लोगों के साथ कोमल थे, विशेषकर उन लोगों के साथ जो जीवन में दुखी थे. प्रभु यीशु विशेष रूप से उन लोगों से प्रेम करते हैं जो पाप में गहराई तक गिरे हुए हैं. He came to help such people because they were rejected by everybody else. The woman caught in adultery, the thief on the cross, rejected criminals. वह ऐसे लोगों की मदद करने आए हैं क्योंकि उन लोगों को बाकी सभी लोग अस्वीकार कर देते हैं. व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, सूली पर चढ़ाए गए चोर, ठुकराए गए अपराधी. Jesus went, picked them up and encouraged them. He saw the good points in those weak, sinful people and he hoped for the best in everyone. प्रभु यीशु गए, उन्हें चुना और उन्हें प्रोत्साहित किया. उसने उन कमजोर पापी लोगों में अच्छे गुण देखे और उसने सभी में सर्वश्रेष्ठ की आशा की. You know, Jesus was this type of person whom other people would just long to be with because he was so understanding, so kind, so gentle. आप जानते हैं प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके साथ अन्य लोग रहना चाहते थे क्योंकि वह बहुत समझदार, दयालु और सौम्य थे. You know who were the people who avoided Jesus? Those who were proud, those who were hypocrites, those who had some secret sin which they were afraid he would expose. वे कौन लोग हैं जो प्रभु यीशु से बचते थे? वे जो घमंडी हैं, वे जो पाखंडी हैं और जिनके पास गुप्त पाप है और जो डरते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें उजागर न कर दे. The Bible says that Jesus, Matthew 12 verse 20, it says Jesus would not break a bruised or a battered reed. हम मत्ती 12:20 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कुचले हुए या टूटे हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता था और न ही धुंधली जलती बत्ती को बुझाता था. A reed is a very small little thing, and if that's bruised or battered, most people would throw it away and pick another reed because reeds are cheap. But Jesus wouldn't do it. सरकंडा एक बहुत ही छोटी सी चीज है. यदि यह जख्मी या कुचला हुआ है तो अधिकांश लोग इसे फेंक देंगे और दूसरा सरकंडा चुन लेंगे क्योंकि सरकंडे सस्ते होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं करेंगे. And a wick that's burning very dimly, Jesus would fan it to a flame. That's what it says there. और एक बाती जो बहुत धीमी धीमी जल रही हो, प्रभु यीशु उसे आग की तरह भड़का देंगे. वहाँ यही कहा गया है. He would not quench a dimly burning wick. वह मंद मंद जलती हुई बाती को नहीं बुझाएंगे. Do you know that if you're like a battered reed, weak, most of your life broken, Jesus cares for you. क्या आप जानते हैं यदि आप एक टूटे हुए सरकंडे की तरह है, कमजोर, आपका अधिकांश जीवन टूटा हुआ है, तो प्रभु यीशु आपकी परवाह करते हैं. He can bring you back into his perfect plan for your life, even if you're like a battered reed or a dimly burning wick or a wick that's about to die out. वह आपको आपके जीवन के लिए अपनी संपूर्ण योजना में वापस ला सकते हैं, भले ही आप एक घिसे पिटे सरकंडे या मंद मंद जलती बाती या बुझने वाली बाती की तरह हो. Jesus saw the good points in people. He always hoped for the best. प्रभु यीशु ने लोगों में अच्छे गुण देखे, वह सदैव सर्वश्रेष्ठ की आशा करते थे. His love was not sentimental. He always sought the highest good. That's why he rebuked Peter with strong words of admonition. उनका प्रेम भावुक नहीं था. उन्होंने सदैव सर्वोच्च भलाई की कामना की, इसलिए उसने पतरस को चेतावनी के कड़े शब्दों से डांटा. You can't rebuke people strongly unless you love them. When James and John were seeking for places of honor,
He rebuked them. आप लोगों को तब तक कड़ी फटकार नहीं लगा सकते जब तक आप उनसे प्रेम नहीं करते। जब याकूब और यूहन्ना सम्मान के स्थान की खोज में थे तो उसने उन्हें डांटा। When they wanted to call down fire on the Samaritans, he rebuked them. He rebuked his disciples 7 times for unbelief. जब उन्होंने सामरियों को भस्म करने वाली आग को बरसाना चाहा तो उसने उन्हें डांटा। उन्होंने अपने शिष्यों को अविश्वास के लिए 7 बार डांटा। क्यों? Why? Because he loved them. If he didn't care for them, then he would have just not corrected them at all. क्यों? क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। यदि उसे उनकी परवाह नहीं होती तो वह उन्हें बिल्कुल भी सुधारता नहीं। He wouldn't have bothered whether they went to hell or anywhere. यदि वे नरक में या कहीं भी जाते तो उसे कोई चिंता नहीं होती। And so we see that Jesus was not afraid of speaking the truth, even if it hurt others, because he loved them. He was concerned for their eternal good. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सच बोलने से नहीं डरते थे, भले ही इससे दूसरों को ठेस पहुंचती हो, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे। वह उनकी अनंत भलाई के लिए चिंतित थे। He was not seeking a reputation for being known as a kind person, or that reputation for kindness would be lost if he spoke strong words. वह एक दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाने की प्रतिष्ठा नहीं चाह रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर उन्होंने कड़े शब्द बोले तो उनकी दयालुता का प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। नहीं। No, he loved other people more than he loved himself, and so he was willing to sacrifice his reputation in order to help other people. वह स्वयं से अधिक अन्य लोगों से प्रेम करते थे, इसलिए वह अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का त्याग करने को तैयार थे। He spoke the truth firmly because he did not want men to be ruined eternally. उन्होंने दृढ़ता से सच बोला क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मनुष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। So in one sentence we could say, the eternal welfare of men mattered more to Jesus Christ than their opinions about him. अनिवार्य रूप से एक वाक्य में हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए मनुष्य का अनंत कल्याण उनके बारे में लोगों की राय से अधिक मायने रखता था। And a true Christian is like that when he encounters other people. एक सच्चा मसीह ऐसा ही होता है जब उसका सामना अन्य लोगों से होता है। Their eternal welfare means more to him than all their opinions of him. उसके लिए उनका अनंत कल्याण उसके बारे में उनकी सभी राय से अधिक मायने रखता है। Once when Peter was in the house of Cornelius and he was talking about the ministry of Jesus to them, he summed up the whole ministry of Jesus in one sentence. एक बार जब पतरस कुरनेलियुस के घर में था तो वह उनसे प्रभु यीशु की सेवकाई के विषय में बात कर रहा था। उन्होंने प्रभु यीशु की पूरी सेवकाई को एक वाक्य में सारांशित किया। In Acts of the Apostles chapter 10:38 he said Jesus went about doing good and delivering people who were oppressed by the devil. प्रेरितों के काम 10:38 में हम देखते हैं, पतरस ने कहा प्रभु यीशु भलाई करते रहे और शैतान द्वारा उत्पीड़ित लोगों को बचाते रहे। You see what the ministry of Jesus was? Doing good, not just preaching, not just saying nice words, but actually doing good to people and delivering them from the oppression of Satan. क्या आपने देखा कि प्रभु यीशु की सेवकाई क्या थी? अच्छा करना, न कि केवल उपदेश देना, न केवल अच्छे शब्द कहना, बल्कि वास्तव में लोगों का भला करना और उन्हें शैतान के उत्पीड़न से बचाना। He didn't just want to win souls. He loved the total man. वह सिर्फ आत्माओं को जीतना नहीं चाहता था, वह समस्त मनुष्य से प्रेम करता था, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। He was concerned about man's physical need. There was a time when there were more than 4,000 people who had been with him for 3 days. We read about that in Matthew 15. 3 days. And they didn't eat anything. And Jesus was concerned. He said, let's provide them with some meal, something to eat. He was concerned about man's physical need. उन्हें मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता की चिंता थी। एक समय था जब उनके साथ 3 दिनों तक 4,000 से अधिक लोग थे। हमने इसके बारे में मत्ती 15 में पढ़ा है। 3 दिन तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। प्रभु यीशु चिंतित थे। उन्होंने कहा, आइए हम इन्हें कुछ भोजन प्रदान करें, कुछ खाने के लिए। He taught us to pray, give us this day our daily bread. And wherever he went, he did good not only to the souls of men but to their bodies. वो मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता के बारे में चिंतित थे और इसलिए उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आज हमें हमारी रोज की रोटी दो।
वह जहां भी गए उन्होंने न केवल मनुष्य की आत्माओं को बल्कि उनके शरीरों का भी भला किया। He cared for people who were sick and suffering. He cared for the worst of sinners so much that his enemies would taunt him saying, "Oh, he's a friend of tax collectors and sinners." उन्होंने उन लोगों की देखभाल की जो बीमार और पीड़ित थे। वह सबसे बुरे पापियों की इतनी परवाह करते थे कि उनके दुश्मन उसे यह कहते हुए चिढ़ाते थे, ओ वह कर वसूलने वालों और पापियों का मित्र है। But that's what he was. He was a friend of the most despised people in society. And a true man of God will be like that also. हाँ, वो ऐसे ही थे। वो समाज के सबसे तिरस्कृत लोगों का मित्र थे और ईश्वर का सच्चा मनुष्य भी वैसा ही होगा। You know, you can be like that. What's hindering you from loving people who are despised by others, from loving people who are low in society? It's your own sense of dignity. You don't want to be like Jesus. आप जानते हैं कि आप ऐसे हो सकते हैं। आपको उन लोगों से प्रेम करने से कौन रोक रहा है जो दूसरों द्वारा तुच्छ समझे जाते हैं? समाज में निम्न स्तर के लोगों से प्रेम करने से यह आपकी अपनी गरिमा की भावना है। आप प्रभु यीशु की तरह नहीं बनना चाहते। You want to have a respectable type of Christianity with respectable type of people? आप सम्मानित प्रकार के लोगों के साथ एक सम्मानजनक प्रकार की मसीह धर्म चाहते हैं। No, it's not natural for man to go around becoming friends with the outcasts of society like the lepers and things like that. But Jesus did that. नहीं, मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक नहीं है कि वे कोढ़ी और उस जैसे समाज से बहिष्कृत लोगों से दोस्ती करे, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा ही किया। You know, we seek to make friends with those through whom we can get some benefit for ourselves. आप जानते हैं, हम उन लोगों से मित्रता करना चाहते हैं जिनसे हम अपने लिए लाभ प्राप्त कर सकें। Our love is selfish. Jesus' love was selfless. It was pure. हमारा प्रेम स्वार्थी है। प्रभु यीशु का प्रेम निस्वार्थ था, यह शुद्ध था। It's not by all this cultural refinement and nice words that we manifest the nature of Christ. It's by love, a love that seeks the good of others. यह इन सभी सांस्कृत सुधार और अच्छे शब्दों से नहीं है कि हम मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं। यह प्रेम से है, एक ऐसा प्रेम जो दूसरों का भला चाहता है। A love that enables us to be their servants like Jesus was. ऐसा प्रेम जो हमें प्रभु यीशु की तरह उनका सेवक बनने में सक्षम बनाता है। Jesus washed their feet not to impress them with his humility, but because he loved them. प्रभु यीशु ने उनके पैर धोए अपनी नम्रता से उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उनसे प्रेम करते थे। You know, whenever Jesus did good to others, he never had the slightest thought that he could get something in return. आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने जब भी दूसरों का भला किया तो उसने कभी सोचा भी नहीं कि बदले में उसे कुछ मिलेगा। Jesus used an example of the sun. The sun shines on the evil and the good, he said in Matthew 5:45. प्रभु यीशु ने सूर्य का उदाहरण दिया। उन्होंने मत्ती 5:45 में कहा, सूर्य बुरे और अच्छे दोनों पर चमकता है। And what is the sun expecting in return from all these people? Nothing. सूर्य इन सभी लोगों से बदले में क्या अपेक्षा कर रहा है? कुछ भी नहीं। What about the rain? He used the illustration of the rain also. बारिश के बारे में क्या? उन्होंने बारिश का चित्रण भी किया। He said the rain falls on the righteous and the unrighteous. And what is the rain expecting in return? उन्होंने कहा कि बारिश धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसती है। बदले में बारिश लोगों से क्या उम्मीद करती है? Not even a word of thanks. धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं। Nobody looks up at the sun and says, "Well, thank you for rising this morning and shining upon us or giving us light." But the sun's not bothered. कोई भी सूरज की ओर देखकर नहीं कहता, आज सुबह उगने और हम पर चमकने या हमें रोशनी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। Even though nobody thanks it, it still rises in the morning. And Jesus said, "Be like that." यद्यपि कोई सूर्य का धन्यवाद नहीं करता, फिर भी यह सुबह उठ खड़ा होता है। प्रभु यीशु ने कहा, ऐसे बनो। Be like your heavenly Father who gives his sunlight to good and evil people, whether they thank him or not. अपने स्वर्गीय पिता के समान बनो जो अच्छे और बुरे लोगों को सूर्य का प्रकाश देता है, चाहे वे उसे धन्यवाद दे या नहीं। Nobody turns up to God and says, "Thank you, Lord, for giving me sunlight this morning." But he still sends it. कोई भी परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं कहता, आज सुबह मुझे सूरज की रोशनी देने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन वह फिर भी ऐसे भेजता है। No, Jesus was not interested in getting something in return. प्रभु यीशु बदले में कुछ पाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे।
See, God's nature is one which wants to give and give and give and give. देखिए, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है जो वह देना चाहता है और देता है और देता है और देता है. That is as natural for God as it is for the sun to shine and shine and shine and shine. यह परमेश्वर के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना सूर्य के लिए चमकना और चमकना और चमकना और चमकना. And Jesus came to earth and manifested that nature of God, seeking to do good and serve and help and bless wherever he went. Whether people appreciated it, whether they thanked him or didn't thank him, it didn't make a और difference to him. प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए और परमेश्वर के उस स्वभाव को प्रकट किया. जहां भी वे गए, अच्छा करने, सेवा करने, मदद करने और आशीर्वाद देने की कोशिश की. चाहे लोगों ने इसकी सराहना की, चाहे उन्होंने उसे धन्यवाद दिया या उसे धन्यवाद नहीं दिया, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. See, it's not easy to manifest this type of love. इस तरह के प्रेम को जाहिर करना आसान नहीं है. Human love is so selfish. If that fellow loves me in return, then I continue to love him. That is the way we can distinguish between human love and divine love. मानव प्रेम कितना स्वार्थी है. यदि वह व्यक्ति बदले में मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता रहता हूँ. इसी तरह हम मानवीय प्रेम और दिव्य प्रेम के बीच अंतर कर सकते हैं. There's a lot of difference between the two. दोनों में बहुत अंतर है. In divine love, it doesn't matter to us whether the other person responds or not. We just continue. दिव्य प्रेम में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है या नहीं. हम बस जारी रखते हैं. Consider the way Jesus used his money. विचार करें कि प्रभु यीशु ने अपने धन का उपयोग किस प्रकार किया. In John 13:29, we see that Jesus used his money basically for two things: to buy what was needed and to give to the poor. यूहन्ना 13:29 से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने पैसों का उपयोग मुख्य रूप से दो बातों के लिए किया. जो आवश्यक था उसे खरीदने के लिए और गरीबों को देने के लिए. Now, Jesus was not a great rich millionaire, but he still found some money to give to those who were poor. अब प्रभु यीशु कोई बहुत बड़ा अमीर करोड़पति नहीं थे, लेकिन उनके पास अभी भी उन लोगों को देने के लिए कुछ पैसे थे जो गरीब थे. He taught people it is more blessed to give than to receive. उन्होंने लोगों को सिखाया कि लेने की अपेक्षा देना अधिक धन्य है. And his love taught him that whatever possessions God gave him were to be used to bless others. उनके प्रेम ने उन्हें सिखाया कि परमेश्वर ने उन्हें जो भी संपत्ति दी है उसका उपयोग दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए किया जाना चाहिए. How many of us have understood it? How many Christians are there in the world who have understood this? That God gives us material things so that we can bless others, use them for the benefit of others. हम में से कितने लोग इसे समझते हैं? संसार में कितने मसीही हैं जो यह समझते हैं कि परमेश्वर हमें भौतिक चीजें इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों को आशीर्वाद दे सके, दूसरों के लाभ के लिए उनका उपयोग कर सके. This is love. When we learn to love people and use things to bless people. यह प्रेम है जब हम लोगों से प्रेम करना सीखते हैं और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए चीजों का उपयोग करते हैं. Let me say something else about his preaching. We read of a time in Luke 19 and verse 41 that he wept over Jerusalem. मुझे उनके उपदेश के बारे में कुछ और कहने दीजिए. हम लूका 19:41 में एक समय के बारे में पढ़ते हैं कि वह यरूशलेम पर रोए. Why did he weep over Jerusalem? He used such strong words when he preached. And little later we read in the same chapter, verse 45 of Luke 19, that he used a whip. But before he used the whip, he wept. वह यरूशलेम पर क्यों रोए? जब उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया. और कुछ समय बाद हमने उसी अध्याय लूका 19:45 में पढ़ा कि उन्होंने कोड़े का प्रयोग किया था, लेकिन कोड़े का इस्तेमाल करने से पहले वह रो पड़े. This was the balance. यह संतुलन था. Let me mention another aspect of Jesus' love, and that is, you didn't have to see a secretary in order to meet with Jesus. मैं प्रभु यीशु के प्रेम के एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूँ, और वह यह है कि प्रभु यीशु से मिलने के लिए आपको किसी सचिव से मिलने की जरूरत नहीं है. Now in the world, if you want to meet a big man, you got to meet a secretary first. अब संसार में अगर आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो पहले किसी सचिव से मिलना पड़ता है. What secretary did Jesus have? Anybody could meet him. Nicodemus could go in the middle of the night, wake him up and speak to Jesus, and Jesus was ready to talk to him. प्रभु यीशु के पास कौन सा सचिव था? कोई भी उनसे मिल सकता था. निकोडेमस आधी रात में
भी जा सकता था, उसे जगा सकता था और उससे बात कर सकते थे। Once Jesus was so busy helping people that we read in Mark 3 verse 20 and 21, he did not even have enough time to eat. एक बार प्रभु यीशु लोगों की मदद करने में इतने व्यस्त थे कि हम मरकुस 3:20-21 में पढ़ते हैं, उसके पास खाने के लिए भी समय पर्याप्त नहीं था। He did not have anybody to regulate the access of people to him saying, you can't come to me. You know, when you become so busy that you cannot meet with ordinary people, you have become more busy than Jesus Christ. उनके पास लोगों की उन तक पहुंच को यह कहते हुए नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, आप उनके पास नहीं आ सकते। आप जानते हैं, जब आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आम लोगों से नहीं मिल पाते, तो आप प्रभु यीशु मसीह से भी अधिक व्यस्त हो जाते हैं। जब आपको When you need a secretary to prevent people from meeting you, you're not a servant of God anymore. जब आपको लोगों को आपसे मिलने से रोकने के लिए एक सचिव की आवश्यकता होती है, तो आप अब परमेश्वर के सेवक नहीं हैं। You're just a businessman. You're running an industry, not a Christian church. आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं, आप एक उद्योग चला रहे हैं, कोई मसीह कलीसिया नहीं। The relatives of Jesus thought he was insane to allow people to take so much of his time. But that is because he loved them. प्रभु यीशु के रिश्तेदारों ने सोचा कि वह मूर्ख है जो लोगों को अपना इतना समय लेने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनसे प्रेम करते थे। Jesus was freely approachable. Once they brought sick people to him at sunset, we read in Luke 4 verse 40, and he spent the whole evening till late into the night, praying for them, laying his hands on them, healing them. प्रभु यीशु के पास आसानी से पहुंचा जा सकता था। एक बार कुछ लोग सूर्यास्त के समय बीमार लोगों को उनके पास लाए। हम लूका 4:40 में पढ़ते हैं कि उन्होंने पूरी शाम से लेकर देर रात तक उनके लिए प्रार्थना की, उन पर हाथ रखा और उन्हें ठीक किया। He did not feel his time was his own. His time was for other people. उन्हें नहीं लगता था कि उनका समय उनका अपना है, उनका समय अन्य लोगों के लिए था। He came to live, to do God's will, to bless them, and he was willing to be inconvenienced. वह जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और वह असुविधा सहने को भी तैयार थे। And this is why the mighty gifts of the Spirit that were manifested through Jesus brought life. यही कारण है कि आत्मा के शक्तिशाली उपहार प्रभु यीशु के माध्यम से प्रकट हुए। You know, miracles are a dangerous thing if they are not operated in love. आप जानते हैं, चमत्कार एक खतरनाक बात है यदि वे प्रेम से संचालित न हो। This is the love of God that we need to flood our hearts. यह परमेश्वर का प्रेम है जिसे हमें अपने हृदयों में प्रवाहित करने की आवश्यकता है। Let's ask God to give it to us. A love that's concerned, even in his last moments, to bring a thief into God's kingdom. उनका प्रेम ऐसा ही था कि वह अपने अंतिम क्षणों में भी एक चोर को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए चिंतित थे। When the world around us sees such love, they will be drawn to Jesus. Let's ask God to give us this love. जब हमारे आसपास के संसार इस तरह के प्रेम को देखेगा, तो वह प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होगा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें यह प्रेम दे।